So in this class, we are talking about understanding the data. We are looking at outliers, noise, and the central tendency and the data dispersion. अब इसका क्या क्या meaning है? We will understand. Noise, outliers. देखो हम लोग पहले central tendency will discuss. Central tendency में there are certain values which you already know. Mean, median, mode, mid range. ये सब values हम लोग ने बहुत basic mathematics में पढ़ा हुआ है. So mean is basically the average of all the values that you take. That's your mean. Median is you arrange all these values in an ascending order and take the central value. So अगर n number of items है, suppose I have 5 values, so 5 plus 1 divided by 2, so that is third value. N plus 1 divided by 2 is my median value. उस ascending order में. ये सबको पता है, right? And mode, you already know the highest occurrence of a particular element. Everybody knows this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So mean, median, mode, ये सब हमें पता है. Now, how do we calculate mean? So हमारे पास दो methods है. If I have a data frame, हमारे पास एक series होगी. Data frame में अगर हम ये एक A ले रहे हैं, either I am referring to a column of a particular data frame or I am referring to a series. सब लोग you understand, right? A data frame का column is a series, right? तो अगर हमारे पास सीरीज है तो वी कैन जस्ट सिंपली से a डॉट एंड मीन, एंड या फिर हमारे पास np डॉट मीन करके भी वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द numpy स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. वी हैड ऑलरेडी यूज्ड इट इन द लास्ट क्लास आल्सो. सिमिलरली वेटेड मीन होता है. वेटेड मीन क्या हो गया? हमारा एक्सपेक्टेशन. सो ये हमारा xi pi का सम होता है. वी ऑलरेडी नो दैट, ये सब सबको पता होगा. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? दैट इज योर वेटेड मीन. सो हम लोग क्या करते हैं? राइट फ्रॉम whatever हमारी जो भी possibilities है, ये probability है of occurrence of a particular element. So then you take the summation, expectation of a particular variable. You ये सब I'm sure stats का class करा हुआ है, so we will not discuss this in details. This is also known as the first moment. Then mode we already know. फिर mid range, एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज योर मिड रेंज. तो क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, दैट्स योर मिड रेंज. दैट इज आल्सो यूज्ड इन सम केसेस एज अ सेंट्रल टेंडेंसी. अब कहाँ हमें क्या चीज यूज करनी है, दैट इज द आइडिया टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स गो बैक टू आवर फाइल हियर. बाइक वाली सब लोग ने खोला हुआ है अपना ये. Open the file. I told you in the last class also, be ready with your Google Colab and the file so that you are able to do it parallelly and कुछ सीखो तो अपना, then you'll have this data. I will not share this file on the classroom because classroom में share करके फिर आप लोग सिर्फ copy paste करके run करते हो. So you have to do it yourself. I will help you wherever you need and you have this to look at. But try to run it yourself. Does everybody have this? Yes, सबने ma'am. कर लिया था? Yes, ma'am. ठीक है. सो अपने ये सब अपने कर चुके हैं. बी का फिर हम लोग ने ये सब भी देख लिया था. फीमेल्स एक हमने बनाया था जेंडर वाला. स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया था. So describe में क्या आता है? So I now have a data frame student. If I say dot describe, it tells me the entire details of this entire data set. ठीक है? तो describe भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जनरली वैल्यूज भी बता दे रहा है सारी यूजर आईडी के साथ. फिर डिस्टेंस हमने निकाला था, कितने डिस्टेंसेस वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीन डिस्टेंस. देखो यहाँ पे यूज करा था. हाँ, आई वाज ट्राइंग टू कम टू हियर. सो np dot mean and sd dot mean. Right? This I told you. So this is what we were discussing here also. अब हम लोग हिस्टोग्राम पे आते हैं. So histogram last year also in computer vision also you did histograms. Histogram सबको पता है क्या करता है? It tells you the distribution in a graphical form. So values क्या है? age की. So suppose I want to find out कि भाई age कैसे distributed है. हाँ, तो अब देखो इस तरह से भी हम कर सकते हैं. B का age लिया है. Now B was the data frame.
अभी हमने क्या यहाँ पे लिया है, फीमेल्स का डेटा लिया है. So what are we saying? plt.hist females and age. So कौन से कॉलम, whatever जिस कॉलम का हमें हिस्टोग्राम बनाना है, I will put that here in round brackets and this will plot the histogram. Is it okay? रन करके देख लो सब लोग. कोड बेटा लिखते भी रहो. अब हमने इसमें जैसे बी लिया है, अगर हम फीमेल्स का एज लेते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू बिन्स. बिन्स याद है सबको क्या होता था? व्हाट इज बिनिंग? रुको एक मिनट. तो हियर बिन्स हम लोग ने ऊपर जब नहीं दिया है तो नन हो गया. बिन्स एक्चुअली 30 is too large for this. ये हमारी इतनी वो नहीं है. बिनिंग क्या करते थे याद करो. इन व्हेन आई हैड इमेजेस, सो सपोज आई हैड बिन्स, अगर हम बना देते हैं 10, तो क्या करेगा, 10 बिन्स बना देगा. 10 वो उतने एक तरह से ये मान के चलो कि हमारे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हो गए और उसमें हमारे पास रेंज आ गई. सो 0 to 255 है, तो इस तरह से डिवाइड कर देगा इंटू 10. तो 0 to 225, फिर 26 to 50, इस तरह से बना देगा एंड उन बिन्स में डाल देगा वैल्यूज. ये इसलिए इधर नहीं काम कर रहा है. एक तो बिन्स इक्वल्स लेट्स से 2. Now if I say bins, so it is now just, it has 2 bins. देखो मोटे मोटे 2 bins बन गए. Can you see this? I think it was not recognizing, मैंने copy paste करा था. तो is it okay? Bins का concept समझ में आ गया? Yes, ma'am. So you have bins, you have range, density, weights. You can just play around the values and say, इसको देख सकते हो. लेबल भी लिखने के लिए क्या होता है, जनरली हम लोग पेपर्स में या कहीं पे भी हमें अगर दिखाना है कि क्या है ये, तो लेबल इक्वल्स एंड यू कैन से एज हिस्टोग्राम. क्यों नहीं आ रहा है? जनरली तो इधर लिख के आता है. I'll see why it is not running anyways. So you can just play around with this. Now you will, एक Seaborn करके हमारे पास एक we have this package which you can import. It is an extremely nice package for all visualizations. So suppose मेरे को देखना है कि how is the age spread of the females that we have. So what is the spread? तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप प्लॉट. अब इसको पैरेलली इधर भी देखते चलो कि व्हाट इज इट. मीन मीडियन मोड हो गया. अच्छा, सम निकालना है. सो यू कैन सी मीडियन ऐसे निकाल लिया. सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये सब वैल्यूज पता है सबको? किसी को कुछ पूछना है? स्टैंडर्ड डेविएशन सबको पता है? वेरिएंस पता है? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. सो अदरवाइज आगे फॉर्मूला आएंगे. आई जस्ट टेल यू. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा स्टैट्स में पढ़ा हुआ होगा, बट आई विल स्टिल लेट यू नो बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आई विल आस्क इन द लैब ऑल्सो. सो सबसे पहले क्या करोगे, अगर स्प्रेड देखते हो डेटा का, हाँ, हिस्टोग्राम जैसे अगर हमने ड्रॉ करा ऊपर, तो देखो ये कैसा है, किस तरह का हिस्टोग्राम है.
मल्टी मोडल, मतलब दो मोड्स हैं इसमें, दिख रहा है ना, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और ये स्क्यूड है, देखो इस तरफ ज्यादा है, अगर सिर्फ हम इतना पार्ट को कंसिडर करते 40 to 50, तो क्या है, स्क्यूड डेटा है, दिख रहा है कि नहीं? स्क्यूड समझते हो क्या होता है? अगर हम स्प्रेड करें, इफ आई प्लॉट अ हिस्टोग्राम एंड इट कम्स लाइक दिस, इसका क्या मतलब है कि इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हैव यू पीपल स्टडीड दिस इन योर स्टैटिस्टिक्स और नॉट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ा है, यस और नो? क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो बेटा. आई थिंक आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल आल्सो. जैसे हम लोग अगर सपोज आई टेक अ पॉपकॉर्न हमने लिया एंड आई पुट इट ऑन फायर, तो क्या होता है, शुरू में बहुत कम आवाज आएगी पॉपकॉर्न की, बिटवीन सर्टेन टाइम फ्रेम एकदम से बहुत सारी वैल्यूज एकदम से पट 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 बोलेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, एंड आफ्टर दैट फिर से नंबर ऑफ पॉप्स इधर कम हो जाएंगे. सो अगर हम प्लॉट करें इसको अगेंस्ट टाइम, यहाँ पे टाइम लिख दे और यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ कर्नल्स पॉपिंग, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इस तरह का आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम, आना चाहिए. So this is a normal distribution. So generally जैसे एक एग्जाम्पल पहले मैंने क्लास में भी दिया था तुम लोग को, about people coming to buy tickets, right? So tickets अगर खरीद रहे हैं लोग for a movie, so this will also follow a normal distribution, क्योंकि generally एक मूवी स्टार्ट होने के पहले और स्टार्ट होने के शुरू के मे बी 5 मिनट्स तक एक बहुत ज्यादा रश होगा, उसके बाद पहले भी कम होगा, बाद में भी कम होगा, एंड देन इट विल डाई आउट, राइट? उसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस. Yes, ma'am. सो सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर डेटा प्लॉट कर रहे हैं. अगर हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आता है, राइट, इट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं स्क्यूड डेटा है. स्क्यूड क्या है, इस तरफ स्क्यूड है, तो इस तरफ स्क्यूड होगा, तो अगर जीरो की तरफ स्क्यूड है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा. ओके, यू हैव टू रिमेंबर, ये पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इस तरफ इधर ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम देखते हैं, देखो हमारे पास 3 वैल्यूज है, मीन, मीडियन, मोड. अगर हमारे पास एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, when you observe these values, you calculate these values, they will come out to be absolutely the same, क्योंकि मैक्सिमम अकरेंस भी देखो मोड इधर ही होगा, मीडियन भी यही होगा, मीडियन और मीन, तीनों चीजें यही होंगी. बट व्हेन आई टेक अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, मीन कैसा होगा, देखो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज, इधर छोटी वैल्यूज क्या है, कम है, और ज्यादा बड़ी वैल्यूज इधर ज्यादा है कि नहीं है? तो बड़े बड़े नंबर्स ऐड करोगे मीन में तो क्या होगा, मीन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? Yes, ma'am. बिगर नंबर्स, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स ऐड कर दिए किसी भी, जैसे मेरे पास 2, 5, 8, 10 है, फिर मैंने 50, 60 ऐसे ऐड कर दिए, तो मेरा मीन इधर शिफ्ट हो जाएगा ना. सो मीन कैसा हो रहा है, इधर बढ़ के आ रहा है, मीन इज द हाईएस्ट वैल्यू. मोड तो मैक्सिमम अकरेंस हो गई, इससे समझोगे तो मोड हमेशा ही मैक्सिमम अकरेंस इसकी होगी, इस वैल्यू की, तो मोड इधर छोटा हो गया, और मीडियन हमारा बीच का है, क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड में मोड हमेशा कम वैल्यू होगी, क्योंकि बाद में ज्यादा वैल्यूज इधर है, लेकिन छोटी छोटी वैल्यूज है, तो मोड तो इधर ही आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अकरेंस तो छोटी वैल्यू का ही है. तो मोड, मीडियन, मीन ऐसे हमारी स्प्रेड होगी इन पॉजिटिवली स्क्यूड. इट इज ऑलवेज लाइक दिस. सो इफ समबडी आस्क्स यू सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या यूज करनी है फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, योर आंसर विल बी मीडियन, बिकॉज ये सबसे ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है, बीच की वैल्यू यही है, मोड छोटा है, मीन ज्यादा है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, now we move on to the negatively skewed data. उल्टा हो गया, अब हमारे पास क्या है, छोटी छोटी वैल्यूज बहुत सारी है, तो छोटी छोटी वैल्यूज बहुत सारी है, तो हमारा मीन छोटा हो जाएगा,
तो मीन हमारा ये वाला हुआ, मोड हमारा बड़ा ही वाला आएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे पास छोटी छोटी वैल्यूज अलग अलग है, बड़ी वैल्यूज ही बहुत सारी रिपीट हो रही है, तो मोड हमारा बड़ा वाला आ जाएगा और मीडियन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, whenever I have a skewed data, I will use median as the central tendency. Understood? यस मैम. Yes, ma'am. तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो हम लोग प्लॉट करेंगे डेटा, हम लोग देखेंगे भाई हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. अगर वो नॉर्मल है तो हम मीन ले सकते हैं, अगर वो स्क्यूड है तो हम मीडियन लेंगे. सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस. एक स्क्यूनेस, चॉम्स्की स्क्यूनेस कोएफिशिएंट होता है. दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म, ऐसे हमें दिख रहा है बट एक्चुअली वैल्यू कितनी है स्क्यूनेस की, इसको हम, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. So you can write it down, number of observations above mean minus number of observations below mean divided by total number of observations. Now try to find out the Chomsky value skewness coefficient for this now. मेरे को find करके बताओ. Do it right now. पहले तो मीन निकालोगे. मीन कैसे निकालोगे? Take the sum of all numbers and divide by the number of elements that you have. मैम 0.2. 0.2. ओके. मीन कितना आया? मैम 25.1. Yes, ma'am. 0.2. 25.1. 1. सो अबव मीन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. 6. 6. 1 2 3 4. 6 minus 4 divided by 1 2 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. 6. हाँ, करेक्ट. इज इट ओके? सबको आ गया ये? Yes, ma'am. गुड. अब ऐसी पियर्सन का कोएफिशिएंट, स्क्यूनेस कोएफिशिएंट इज वेरी ऑफन यूज्ड. इट्स अ स्टैंडर्ड. पियर्सन, चॉम्स्की भी यूज होता है और पियर्सन का भी यूज होता है. इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ये कैसे, ये इसको निकालो. मीन पता है, मोड क्या होगा इसमें? मोड में कैसे 27 हो गया क्योंकि 2 बार यही आ रहा है ना. Yes, ma'am. और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, ये होता है x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन n. तो क्या करोगे, x और म्यू तुम्हारा है जो भी तुमने एवरेज निकाला था इसका, और हर एक का सम. ये आता है निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन सबको, क्या करके बताएं? Yes, ma'am. आता है? या मेरा पेन ही नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्या हो गया. Yes, ma'am. आता है तो निकालो, ये वाला से निकालो. निकालो बेटा, इसका निकालो तुम लोग. तो पेन चेक कर रही हूँ. हुआ कितना निकला?
What is the standard deviation? मैम 5.5198. ओके सब, और फिर ये स्टैंडर्ड, ये पूरा पियर्सन का कोएफिशिएंट कितना निकल रहा है? What is the Pearson coefficient, beta? अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है. So mean is greater than your mode. इस वाले के लिए कर रहे हो ना? हाँ, so your mean is greater than your mode. So obviously ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर प्लॉट भी करोगे तो देखोगे तो ये ऐसा स्क्यूड आएगा, ऐसा आएगा. सो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो हियर यू कैन ऑल्सो, दिस साइन विल टेल यू. देखो अपने आप समझ में आ रहा है, मीन और मोड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मोड अगर बड़ा है मीन से तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मोड बड़ा है मीन से तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यू है. इज इट क्लियर? यस मैम. अच्छा, अब क्या करते हैं, अब वापस इधर चलते हैं. ये एक्चुअली आई हैव टेकन अनदर फाइल, एक और फाइल पे वर्क करेंगे आज ही. पहले इसको कंप्लीट करते हैं. तो अभी हमने क्या करा, स्ट्रिप प्लॉट करा. अच्छा, स्ट्रिप प्लॉट में क्या होगा, इट विल जस्ट प्लॉट स्ट्रिप वाइज सारा डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया. देखो 25 से लेके 50 समथिंग होगा, 54 या कुछ ऐसा होगा. यहां तक इसने लिया और सारी एज को इसने प्लॉट कर दिया कि कितनी अकरेंसेस हैं. इधर इस पर्टिकुलर वैल्यू की 1 2 3 अकरेंस है, इधर 1 2 3 ऐसे अकरेंसेस को ये कर रहा है. इधर आई विल शो यू. इधर है, ये स्ट्रिप चार्ट से इसी का. सो हिस्टोग्राम हमने देखा, स्ट्रिप चार्ट देखा. इट शोज लाइक दिस एंड इट शोज यू हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन अ पर्टिकुलर, इस तरह से. ठीक है, स्ट्रिप प्लॉट हो गया. फिर उसके बाद हमारा स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट इज टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो अगर रिलेटेड है दो वैल्यूज, इसका क्या मतलब होता है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना. सो सपोज आई से एज एंड वेट, व्हाट डू यू फील, आर दे कोरिलेटेड? एज से वेट का फर्क पड़ता है कि नहीं, आपस में रिलेशन होगा कि नहीं होगा? Age of a person and weight of a person, will they be correlated or not? Yes, sir. They will be Yes, correlated ma'am. till a particular age, right? फिर उसके बाद इतना शायद नहीं फर्क पड़े, because आदमी का generally weight stable हो जाता है after some time. But at least from your, you know, when you're born till your adulthood, एक age का थोड़ा सा pattern रहेगा, right? So they are positive correlation. So क्या होगा, अगर हम दो values को plot करते हैं, speed और age. अब इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज और जो उनकी स्पीड है ड्राइविंग की, उनमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं. तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि यंग बच्चे बहुत तेज स्पीड में जा सकते हैं,
बट व्हेन यू लुक एट दिस स्कैटर प्लॉट, कोई रिलेशन दिख रहा है ऐसा? नहीं दिख रहा है ना? इसको इधर हम लोग कर लेते हैं फीमेल पे, फीमेल्स था शायद, हाँ. So here what we are trying to do, we are trying to assess the relation between the age and the speed. So there may be certain outliers कि भाई चलो ये इसकी जो है ये she's like around 37 years or 38 36 years and the speed is extremely high. But generally एक कोई ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं? एक अगर हम लाइन फिट करें तो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है. सो दिस इज अ विजुअल थिंग. अब लेट्स सी और क्या क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं. एज, एम्प्लॉयड फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस और ओके साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी. किन दो वैल्यूज में लगता है कोरिलेशन होगा? कैन यू टेल मी? Can you find out any value? Ma'am, distance and time. Distance and time में कोई correlation होगा? चलो let's try and see. So हम लोग क्या करते हैं, फीमेल्स का डिस्टेंस और हम टाइम, इनको प्लॉट करके देख लेते हैं. You can see a trend. That's correct. भाई डिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना ज्यादा टाइम लगेगा. That's pretty obvious. So you can see the trend here. Yes or no? सबको दिख रहा है किस तरह से इंक्रीज हो रहा है. कुछ कुछ वैल्यूज है जो इनको कहते हैं आउटलायर्स. जनरली थिंग्स विच डू नॉट फिट, विच आर लाइक आउट ऑफ दिस थिंग, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बात करते हैं उनके लिए. बट एक ट्रेंड एक जनरल दिख रहा है. And it could also be a curve. It could be like this, right? It is not necessarily a straight line also. How we can fit, we will see. आगे वो हमारा आएगा, लेकिन अभी एक हमें सिर्फ ट्रेंड देखना है. तो सबको दिख रहा है ये डिस्टेंस एंड स्पीड में भी एक छोटा सा ट्रेंड तो दिख ही रहा है. अब एक बॉक्स प्लॉट है. बॉक्स प्लॉट में क्या क्या वैल्यूज होती हैं बताओ भाई. स्टैट सबने पढ़ी हुई है. बॉक्स प्लॉट क्या बताता है? What is a box plot? Okay, so I will tell you. देखो कोई भी डेटा को अगर हमें बॉक्स प्लॉट में रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज होंगी. मैक्सिमम, जैसे सपोज लेट्स टॉक अबाउट कोई भी एक डेटा ले लेते हैं. तो पेन नहीं चल रहा है. एनीवेज कोई भी एक डेटा ले लेते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इधर दिखाएंगे हम. एक मिनिमम वैल्यू होगी वो इधर दिखाएंगे. प्लॉट कैसे बनाएंगे? Q1 Q3. Q1 Q3 निकालना आता है. Q1 Q3 ये Q2 है एक्चुअली. मीडियन क्वार्टाइल्स निकालने आते हैं सबको? यस और नो? आता है कि नहीं आता? बेटा बोलो फिर मैं वैसे बनाऊं. एक्चुअली बन तो रहा No, ma'am. नहीं आता है. अच्छा, पेन के बिना चलेगा नहीं काम. पेन चल ही नहीं रहा है. क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसको. दूसरा एक बार ट्राई करते. एक मिनट रुकना. अच्छा ये देखो कुछ गलत सलत चलेगा, बट तब भी कुछ चलेगा. अरे भाई क्या हो गया है? अब देखो डेटा कुछ ये गलत सलत लिखिएगा, बट मैं मेन जो लिख रही हूँ वो पढ़ो.
सपोज मेरे पास डेटा है 2, 3, 5, 7, 10, 10, 20, 21, 30, ठीक है, कुछ इस तरह का डेटा है. क्वार्टाइल, अब मीन तो तुम लोग को पता है कैसे निकालते हो, यू विल टेक द एवरेज. मिनिमम इसका क्या हो गया, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 30. अब Q1 निकालना है. Q1 हो गया बेसिकली 25% ऑफ माय n+1. तो n+1 हुआ हमारा, n इज 1, 2, 3, ये क्या बन रहा है, 1, 2, 3, समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज है. सो हमारा n+1 हो गया 10. सो Q1 हो जाएगा 10 divided by 4, that is 2.25. 2.5. क्या हो रहा है यार ये. 2.5 होगा कि नहीं होगा, 2.5. 2.5. होगा ना. सो 2.5. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ ये सेकेंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे 3 और 5 का, तो 4 हमारा Q1 हो जाएगा. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं Q2 तो तुम लोग को पता है मीडियन हो गया बेसिकली. तो हमारा क्या है, फिर से 10 वैल्यूज थी, तो 10 डिवाइड बाय 2, फिफ्थ वैल्यू. सो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा Q2 हो गया, ये Q1 हो गया. अब Q3 के लिए हम करेंगे 75% ऑफ 10. ये हो गया 3/4 ऑफ 10. कितना हो गया ये बेटा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7.5. 7.5. तो 7th और 8th का मिडिल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th. So 20.5 will be my Q3. Understood? Yes, ma'am. Yes. So Q1 हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, Q3 इधर ड्रॉ करेंगे, मीडियन इधर बनाएंगे, मीडियन इज Q2. फिर हमारा मैक्स क्या होगा 30. Q1 हमारा ये आ गया, फिर मिनिमम हो गया 2. अब इस तरह से एक बॉक्स प्लॉट बना सकते हो कि नहीं, ये सब वैल्यूज ज्वाइन करके. So, इसमें हमारे क्या हो जाएगा, जब हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, ये 30 हो गया. एक्चुअली इसको हम लोग प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाते हैं ऐसे करके. तो हमारे 30 तक ये गया, तो ये 30 पे हमारा ये वाला लाइन दिखेगा. देखो इस तरह से दिखता है अगर ऐसे. अंडरस्टूड? सो हमारा ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये हमारा Q1, Q2, Q3, ये 3 वैल्यूज. और बस उसको उठा के हमें आपस में ज्वाइन करके ये बॉक्स प्लॉट बना देना है. तो दिस इज योर बॉक्स प्लॉट. स्टैंडर्ड कोई भी अगर हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, यू शुड बी एबल टू ज्वाइन मेक अ बॉक्स प्लॉट. अब ये क्या है, आउटलायर. ये आउटलायर कैसे डिटरमिन करते हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. आउटलायर हमें क्या होता है कि हमारा जो, इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज. Q1 माइनस Q3 इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो एक ये याद रखो. तो ये बड़ा मुश्किल है यार, ये पेन इतना सड़ा हुआ हो गया है. Q3 माइनस Q1 इंटू 1.5 करोगे. अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई. Q3 में ये वैल्यू ऐड कर दोगे प्लस दिस वैल्यू, इधर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे Q1 में. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में से 1.5 टाइम्स का सेपरेशन अगर हमारा मैक्सिमम के आगे, फिर हमारे पास कोई वैल्यू उसके ऊपर जा रही है, तो हम उसमें लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे. ये अगर हमारे पास सपोज 50 था, हमारा IQR क्या है इसमें, Q3 था हमारा 25, Q1 है, Q1 क्या है 4, है ना. Yes. 20.5 माइनस 4, तो ये कितना हो गया
15.5। अब इसको इंटू 1.5 करोगे तो क्या आएगा? 15.5 इंटू 1.5 23.25। अगर हम 23.25, Q3 हमारा था 20.5, उसमें ऐड कर देते तो 43.75। अगर ये 50 कोई वैल्यू है तो हम लोग मैक्सिमम क्या बनाएंगे? हम लोग यही तक बनाएंगे, इसको हम एक आउटलायर की तरह दिखाएंगे। बाय आउटलायर, आउटलायर का मतलब समझते हो तुम लोग? जैसे मैंने पहले एग्जांपल आई थिंक आप लोग को बात करी है व्हेन वी वर डिस्कसिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट सपोज आई से, अच्छा चलो एक एवरेज इंडियन की हाउस होल्ड इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भाई एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल में हम लोग सबकी इनकम लेके और उसका एवरेज करके या जैसे भी हम नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म्स आर द बेस्ट फॉर्म्स फॉर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम स्क्यूड डेटा लेते हैं, सपोज हमने क्या करा, हमने अंबानी की इनकम ऐड कर दी, हमने क्या करा, हमने 5-6 ऐसे लोग, अडानी, अंबानी, इन लोग की हमने इनकम लेके ऐड कर दी, क्या होगा? हमारा पूरा डेटा शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो हमारे पास एवरेज इनकम आएगी, विल इट बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? No, ma'am. So No, that ma'am. is why what we do is that we say that these are outliers. We will not consider them in our model. तो जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो हम पहले डेटा एनालाइज करते हैं। कोई बहुत छोटी ऐसी वैल्यू है, सपोज हमने किसी भिखारी की भी इनकम, भिखारी भी आजकल खैर काफी रिच होते हैं लेकिन वो बात अलग है, लेकिन जनरली हमने कुछ ऐसी ले ली वैल्यूज जो कि बहुत ही कम है, मिनिमल है, मिनिमम वेज से हमारे से कम लोग रह रहे हैं, उनकी भी वैल्यू हमने जोड़ दी, तो क्या होगा? हमारा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो हम पॉजिटिव स्क्यू कर रहे हैं, नेगेटिव स्क्यू कर रहे हैं, लेकिन हम आउटलायर्स ऐसे होंगे जो कि बेसिकली वी विल नॉट ऐड देम इन आवर मॉडल। तो हमें एक रेंज लेके चलना पड़ता है, इस रेंज में अगर वैल्यू है तो हम उसको मॉडल में कंसिडर करेंगे। सो एनीथिंग विच इज फिटिंग विद दिस आउटलायर वाला फॉर्मूला, उसको हम ले सकते हैं मॉडल में, उसके अलावा वैल्यूज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और कहते हैं ये आउटलायर्स हैं। So whenever you do data processing, data analysis, you have to make sure that maybe कई बार क्या होता है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने वोल्टेज ही लिया, सपोज आप कुछ कर रहे हो, एकदम से हाई वैल्यू आ गई, सपोज टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, अब कहीं एकदम से आ गया 500 डिग्री, यू नो दैट दिस इज रॉन्ग, इट कांट बी लाइक दिस, सो आप उसको हटा दोगे, यू विल नॉट टेक इट इन योर मॉडल। एकदम -50, -20, कानपुर में -10 डिग्री आ गया, सो यू अंडरस्टैंड कि भाई ये कुछ डेटा गड़बड़ है, कैसे आया ये नहीं पता, बट आप इसको हटा दोगे। तो पहले आप एनालाइज करते हो सारा डेटा एंड यू ट्राई टू रिमूव ऑल द आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. एंड देन Yes, यू ma'am. बॉक्स प्लॉट। अब इसके लिए बड़ा अच्छा एक हमारे पास पैकेज है, सपोज मेरे को देखना है, सीबॉर्न में ही हमारे पास एक इनबिल्ट है जिसका भी बॉक्स प्लॉट बनाना है, ऐसे बन करके आ जाएगा। और एक आउटलायर है, आउटलायर कौन सा होगा? एज अगर हम लोग देखते हैं, ये तो स्टूडेंट वाला है, फीमेल्स वाला ये है। सो एज में देखो, दिस इज 51 की एक एज दिखी थी, सो आई थिंक दैट शुड बी द आउटलायर। जनरली देखो ट्रेंड जो है डेटा का, इट्स इन 20s एंड ऑल, 40s में भी जा रहा है, एक कुछ अलग से है, ठीक है। तो इस तरह से वो डेटा में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यू कैन प्लॉट अ बॉक्स प्लॉट। स्टेम ग्राफिक इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट योर डेटा, इधर मैंने शायद डाला हुआ है, आई शो यू, ये है स्टेम ग्राफिक। इस तरह से होता है, सपोज मेरे को मेजर करना है कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यूज है, ये सपोज ये वाला है, हाँ, इसको लेके चलो, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, अब इसमें देखो एजेस है, सपोज हम किसी की प्लॉट कर रहे हैं,
स्टेम ग्राफिक्स में ये है इस तरह का। तो इट इज बेसिकली टेलिंग यू कि कितनी वैल्यूज देखो, 22 का एक भी नहीं, एक वैल्यू है, 0 एक लगा है, एक वैल्यू, 23 की एक वैल्यू, 24 की एक वैल्यू है, 25 में 1 2 3 4 5 पीपल आर देयर। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। 26 के कितने लोग हैं, जीरोस बस ये बता रहा है कि नंबर ऑफ अकरेंसेस। सो फॉर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन 63 का, अच्छा कोई एक था, ओके, तो 63 एक पर्सन है 63 एज का, 61 के दो लोग हैं, 54 के दो लोग हैं। इस तरह से यू कैन फील सी द विजुअलाइजेशन। ये स्टूडेंट्स का एज है, आई थिंक बी वाला जो हम लोग ने बनाया था स्टूडेंट वाला था या क्या वर्किंग था, आई डोंट रिमेम्बर, बट व्हाटएवर इट इज शोइंग यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर एज। अंडरस्टूड? तो ये स्टेम ग्राफिक है। इसके लिए हम लोग क्या है, स्टेम ग्राफिक करके एक अलग से एक पूरा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। यू कैन इंपोर्ट दिस ऊपर से। अच्छा, पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा पहली बार जब रन करोगे। सो दिस इज स्टैंडर्ड, ये इंस्टॉलेशन के लिए करेंगे। फिर इंपोर्ट करा स्टेम ग्राफिक, दिस लाइब्रेरी इज नाउ इंपोर्टेड। देन यू कैन यूज डॉट स्टेम ग्राफिक एंड व्हाटएवर यू वांट टू डिस्प्ले। सो हमने एज डिस्प्ले करनी है, हमने उसका ग्राफिक बना दिया। इज इट ओके? अब हमें काउंट प्लॉट बनाना है। आई वांट टू फाइंड आउट काउंट प्लॉट, मतलब एज के काउंट प्लॉट बना दो कितने हैं। तो वही जो हम लोग अभी ऐसे कर रहे थे, इसमें हमें काउंट पर करना पड़ रहा है, इसमें विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओके 29 के दे आर ऑलमोस्ट 12 पीपल हियर, 51 के यू हैव, और डिफरेंट कलर्स है इसमें। सो इट्स अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। कोई एकदम से बोलेगा तो दिख जाएगा कि अच्छा 29 के कितने हैं, 12 है, सबसे ज्यादा किसका अकरेंस है, 36 के 9 है। So it's very clear. So this is another count plot. It is counting and it is plotting. फिर rug plot करके एक है, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे दिखाता है, बट इसका कोई यूज नहीं करते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा खास नहीं है। हिस्टोग्राम तो हम लोग बना चुके थे। हाँ देखो, हिस्टोग्राम में अब हमने क्या करा, 30 हमने बिन्स कर दिए और हमने उसको डिवाइड कर दिया इधर। So I'll have 30 values divided है इसमें। अब जहां जो वैल्यू होगी, ऑब्वियसली जैसे इसमें कोई नहीं है तो नहीं दिखेगा, इधर कई सारे ब्लैंक्स हैं, बट जहां जिस एज में ऐसे डिवाइड होके वी कैन सी। इसमें हमने एज कलर रेड दे दिया सो दैट आई एम एबल टू डिस्टिंग्विश कि एक पर्टिकुलर प्लॉट ऐसा दिख रहा है। विड्थ हमने 0.95 दे रखी है, थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए, नहीं दोगे तो 1 हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा होगा और कुछ खास नहीं। सो यू कैन प्लॉट द हिस्टोग्राम जैसे हमने देखा था। अब हमने क्या करा, वी आर ट्राइंग टू जस्ट टेक आउट द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर बी वैल्यू दैट वी हैड। सो स्टूडेंट्स के में से एज निकाल ली, ये सीरीज होगा, यू हैव अंडरस्टूड, ये सब वी हैव ऑलरेडी डन दैट। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएंस सबको पता है, वेरिएंस कैसे निकालते, अभी मैंने बताया यहाँ पे, आई हैड डिस्कस दिस फॉर्मूला अभी जब कर रहे थे। सो आई डोंट नो अगर ये वाला रह गया तो वेरिएंस क्या है हमारा, ये वाला जो अभी तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, इधर निकाला था ना अभी। Yes, ma'am. सो उसी का स्क्वायर्ड वैल्यू इज योर वेरिएंस। सो वेरिएंस इज दिस मच, मीन से हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके एंड यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू एंड देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ दिस। सो दिस इज योर स्प्रेड। स्प्रेड क्या बताता है, एनी आइडिया? So if I'm trying to understand what a spread tells me, देखो डेटा देखो, सपोज इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये हमारे मीन से कितना ज्यादा डिफरेंस है बाकी सब डेटा का। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ और ऐसा हो सकता है। वेरिएंस किसमें ज्यादा है, if this is 1
2 and 3. वेरिएंस सबसे ज्यादा किसमें है? बेटा जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो. वेरिएंस क्या हुआ? वेरिएंस इज टेलिंग मी कि मीन वैल्यू से हम कितना दूर है. देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, मीन वैल्यू से कितने दूर है ये निकाल रहा है कि नहीं. x माइनस दिस, सो x तो ये सब वैल्यूज है ना, ये सब वैल्यूज है x की, ये सब वैल्यूज है. तो हम कितना दूर है, तो ये वाले में सबसे ज्यादा दूरी निकलेगी. व्हेन आई ट्राई टू ऐड दिस, क्या होगा, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा. इस वाले में क्या है, सब बहुत पास है वेरिएंस के, तो इसमें वैल्यूज छोटी होंगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तुम लोग किसका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो? इसका इससे फाइंड आउट कर रहे हो, इसका इससे फाइंड आउट कर रहे हो, इन सबको ऐड कर रहे हो स्क्वायर करके. यस और नो? If you have a problem, ask. So this is your variance that will tell you the spread. तो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा वेरिएंस होगा. So you can see it tells you the measure of spread. Standard deviation फिर से वही है, उसी का स्क्वायर रूट लोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू. एंड हमारे पास दोनों वैल्यूज, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो डिस्पर्जन बताता है. सो हियर इन दिस फाइल वी कैन फाइंड आउट. अब हमने क्या करा, हमने सम्स निकाले, हमने एक मीन को क्या कर दिया, m कर दी वैल्यू. फॉर ऑल वैल्यूज आई एम सेइंग i की वैल्यू से m माइनस करो और स्क्वायर कर दो. तो हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट दिस वैल्यू, ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट. From all the values subtract the mean and square. So this is what I am doing here, I minus 1 to the power 2 and I am adding it to the sum. So ultimately, can you see that this numerator is got? Is it okay or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने Yes, ma'am. निकाला, लेंथ क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ वैल्यूज n. तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया इसका. अगर हम ये डिवाइड करके निकाल दे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज एक्चुअली माय स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सॉरी वेरिएंस, इसका स्क्वायर निकाला है. और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालेंगे तब भी सेम आएगा. दिस इज जस्ट टू शो यू दैट द फॉर्मूला इज दिस. आई वांटेड टू एक्सप्लेन, अदरवाइज यू कैन यूज दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट फॉर्मूले से कैसे निकालते हो, सेम आएगा वैल्यू, ऑब्वियसली सेम ही आएगा फॉर द सेम डेटा सेट, बट दिस इज टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. इज इट क्लियर? Yes. ठीक है. Yes, ma'am. तो फाइन. अब ऐसे कर सकते हैं, फिर साइटपाई से इंपोर्ट स्टैट्स करा, तो स्टैट्स में मोड, मीडियन, ये सब निकल आता है. मोड निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा, Q1 हम निकाल सकते हैं. तो NP डॉट परसेंटाइल, आई वाज सेइंग 25%, तो 25 लिख दिया. इंटरपोलेशन मिड पॉइंट, ये एक स्टैंडर्ड है, हमें एवरेज करके निकालना पड़ता है. Q1 की वैल्यू निकल आई. Q3 की हम 75% पे लेते हैं. मैक्सिमम निकल आया, मिनिमम निकल आया. अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो मीन भी निकल आएगा हर एक का, ऐसे करके ये वैल्यूज हम देख रहे हैं क्या क्या है. तो हमारे पास ये सारे, देखो हमारे बॉक्स प्लॉट में क्या क्या काम आता है. वी कैन टेक आउट इंडिविजुअली ऑल दीज वैल्यूज ऑल्सो. Q1, Q3, Q2, मैक्स, मिनिमम, यही चाहिए होता है हमें बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए. और ये सब हमने अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बॉक्स प्लॉट तो इसमें ड्रॉ कर ही सकते हैं. सिमिलरली अब हमें सपोज ये करना है कि साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बी का अगर हम देखेंगे तो बी में देखो क्या है, साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी बी में डिस्क्राइब करा. सी हमने, अच्छा इसकी साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी को अलग कर दिया हमने. डिस्क्राइब में ऑब्वियसली वही वैल्यूज होंगी जिनके आप मीन, मीडियन, मोड ये सब निकाल सकते हो. देखो डिस्क्राइब से सारी वैल्यूज आ गई, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मिनिमम 25,
Q1, Q2, Q3 maximum, all the numerical values have been taken, right? न्यूमेरिकल में ही ये सब निकाल सकते हो. यू नो दैट कैटेगोरिकल वैल्यूज में 25% का कोई मतलब नहीं है. कैटेगोरिकल में क्या यूज होता है? सिर्फ मोड निकाल सकते हैं कैटेगोरिकल में. यस और नो? यस मैम. सो अब हमने क्या करा, सी में साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी करी. अगर हमें इसकी डिटेल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स. तो वो बता देगा, देखो 58 लोग सेवरल टाइम्स अ वीक जाते हैं, 47 लोग डेली जाते हैं, 14 लोग सेवरल टाइम्स, 2 people लेस देन वंस अ मंथ. तो ये वैल्यू काउंट्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक मेथड है विच यू शुड नो. तो ये हमेशा वहां पे काम आ जाता है जहां पे हमारा कैटेगोरिकल डेटा है. देन हेलो, क्लास में हूँ अभी, मैं आती हूँ. क्लास में हूँ अभी. हाँ. फिर L इज इक्वल टू डेली, सेवरल मंथ. ये फ्रीक्वेंसी अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी दिख जाएगी, वो कुछ खास बात नहीं है. देयर आर वेरियस वेज टू डू इट. अगर पाई प्लॉट बनाना है तो PLT डॉट पाई और फ्रीक्वेंसी डाल दोगे तो ये प्लॉट्स बन जाएंगे. पाई सबको आता है ना पाई चार्ट बनाना? वो 360 Yes, डिग्री और ये सब बनाते नहीं थे पहले, वो बचपन में करते थे. नंबर ऑफ, तो क्या करते थे बेसिकली, 47 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर. अब इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल जो भी, अगर सपोज 100 आ रहा है तो 47 अपॉन 100 इंटू 360, उतना एंगल निकाल देते थे, है ना? तो वैसे ही हमारा पाई चार्ट बन जाता है. तो ये हमारा विजुअलाइजेशन का पार्ट हो गया. थोड़ा फास्ट मैंने इसलिए कराया है सो दैट आई नीड टू कवर मशीन लर्निंग. स्टैट्स में हम लोग लास्ट ईयर इतना ज्यादा घुस गए थे कि मतलब महीनों, 2 महीना निकल गया था. सो वो बहुत कम एल्गोरिथम्स कवर हो पाते हैं मेन वाले में. स्टैट्स वाला पार्ट आई थिंक शुड बी क्लियर. किसी को कोई प्रॉब्लम हो मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगी, ठीक है? सो दैट यू पीपल आर एबल टू रन इट एंड डू इट. लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, क्लियर कर लो. एनी डाउट्स? नो मैम, अभी नहीं. ठीक है, तो चलो आई स्टॉप द क्लास. एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी भाई सब लोग अपना अपना ये करते रहो ताकि तुम लोग का जो ये